چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ تقریب میں جسٹس اقبال کلہوڑو، جسٹس عبدالرحمان، جسٹس عمر سیال شریک، جسٹس مبین لاکھو، جسٹس ارشد حسین، جسٹس کوثر سلطانہ اور دیگر ججز بھی شریک ہوئے۔ جسٹس شفیع صدیقی نے مارچ 2012 میں سندھ ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جسٹس محمد شفیع صدیقی سب کے دل سے قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ یہ کہ بحیثیت چیف جسٹس ہائی کورٹ سندھ میں اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق انجام دوں گا۔ یہ کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کے بروجہ ضابطۂ اخلاق کی پابندی کروں گا۔ یہ کہ میں ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کردار یا فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا۔ اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ یہ کہ میں ہر حالت میں تمام لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی نے 27ویں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جسٹس شفیع صدیقی سے عہدے کا حلف لیا۔ 27ویں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس محمد شفیع صدیقی کون ہیں؟ ایک نظر ڈالتے ہیں جسٹس شفیع صدیقی کے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بننے تک کے سفر پر۔ جسٹس شفیع صدیقی 12 اگست 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ 1992 میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہوئے۔ 2 سال کے بعد 1994 میں ہائی کورٹ میں وکیل کے طور پر پریکٹس شروع کی۔ 2008 میں سپریم کورٹ میں وکیل کے طور پر انرول ہوئے۔ 20 مارچ 2012 میں سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر تعینات ہوئے۔ 25 جون 2024 کو سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لیا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی کی حلف لینے کے بعد مزار قائد آمد۔ چیف جسٹس نے مزار قائد پر حاضری دی ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مزار پر پھول بھی رکھے، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی کی حلف لینے کے بعد مزار قائد آمد۔ چیف جسٹس نے مزار قائد پر حاضری دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مزار پر پھول بھی رکھے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی حلف لینے کے بعد مزار قائد آئے ہیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مزار پر پھول بھی رکھے، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محمد شفیع صدیقی کی حلف لینے کے بعد مزار قائد آمد۔ چیف جسٹس نے مزار قائد پر حاضری دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے مزار پر پھول بھی رکھے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی۔ ربع مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز کیسے جاری ہوں گے؟ وزارت خزانہ نے حکمت عملی تیار کر لی۔ پہلی سہ-ماہی میں منظور شدہ ترقیاتی بجٹ 15% دیے جائیں گے۔ مالی سال 2024-25 کے لیے ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز جاری کرنے کا معاملہ، منظور شدہ منصوبوں کے لیے مختص ترقیاتی بجٹ جاری کرنے کی حکمت عملی تیار۔ وزارت خزانہ نے مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی بجٹ کے لیے فنڈز جاری کرنے کی حکمت عملی جاری کر دی۔ وزارت خزانہ کے مطابق پہلی سہ ماہی میں منظور شدہ ترقیاتی بجٹ 15% دیے جائیں، دوسری سہ ماہی میں منظور شدہ ترقیاتی بجٹ 20% جاری ہوگا، جبکہ تیسری سہ ماہی میں منظور شدہ ترقیاتی بجٹ
25% दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि माली साल 2024-25 के लिए तरक्याती बजट के फंड्स जारी करने का मामला बात करने के लिए ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा क्या हिकमत अमली बनाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए माली साल 2024-25 के लिए तरक्याती बजट मंजूर, तरक्याती बजट के लिए फंड जारी करने की जो हिकमत अमली वो तैयार कर ली गई है। हिकमत अमली जो है वो 6 माही रिपोर्ट्स के ऊपर इन्हिसार होगा। इसका 4 छमाही रिपोर्ट है और उनके अंदर जो है वो बजट को जो है बजट की बहाली की जाएगी। इसके मुताबिक जो है सबसे पहली छमाही में मंजूर शुदा तरक्याती बजट की 15% जो है रकम वजारत खजाना देगा, जबकि दूसरी छमाही में मंजूर शुदा तरक्याती बजट में 20%, तीसरी छमाही में 25% और चौथी छमाही में 40% जो है वो बजट जारी किया जाएगा। वजारत खजाना का मजीद ये कहना है कि तरक्याती बजट के लिए फंड मनसूबा बंदी के जरिए इख्तियार किए जाएंगे, जबकि ज़र मुबादला की अदायगियों के लिए फंड की फाइनेंसिंग डिवीजन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की फीस की मंजूर दरकार होगी, जबकि वॉच प्रोजेक्ट के लिए अलग असाइनमेंट अकाउंट खोला जाएगा। बहुत शुक्रिया ताहा, आपने हमें अपडेट किया। महकमे इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध में डेपुटेशन पर तैनात शहबाज मुगल ओहदे से फारिग कर दिए गए। शहबाज मुगल को वापस कराची पुलिस में सरेंडर कर दिया गया। जी हाँ, आपको बताते चले महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध में डेपुटेशन पर तैनात शहबाज मुगल ओहदे से फारिग कर दिया गया। शहबाज मुगल को वापस कराची पुलिस में सरेंडर कर दिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा शहबाज मुगल को क्यों फारिग किया गया? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने साबिक चेयरमैन इंक्वायरी व एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट संत फरत अली जुनूदी की जानब से 16 ग्रेड के जो है पुलिस इंस्पेक्टर को की खिदमत कराची पुलिस ने लेकर महकमा एंटी करप्शन के सुपर्द की, जिसके बाद उनको जो है महकमे की जानब से बतौर पर्सनल स्टाफ अफसर के ओहदे पर तैनात किया गया था। ये 17 ग्रेड की कैडर पोस्ट थी, जहाँ पर दिलीप कुमार तैनात थे, लेकिन उनको हटाकर जो है शहबाज मुगल इंस्पेक्टर को डेपुटेशन की बुनियाद पर तैनात किया गया। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत सदर ने उसको ओहदे से फारिग करके उनको सरेंडर करके वापस उनकी खिदमत कराची पुलिस चीफ के हवाले कर दी है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह ने 2 जुलाई को शहबाज मुगल की तैनाती को गैर कानूनी करार दिया और फौरी तौर पर इनको सरेंडर करने के अहकाम जारी कर दिए, जिसके बाद महकमा एंटी करप्शन ने बाकायदा तौर पर इनको सरेंडर कर दिया। इस हवाले से जैसे इनको फरत अली जुनूदी ने तैनात किया था, उस वक्त के जो सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श मेहर ने इस अफसर की तैनाती की मुखालफत की थी, जिसके बाद फरत अली जुनूदी को ओहदे से फारिग किया गया। लेकिन जो है शहबाज मुगल ओहदे पर विराजमान रहा। 2 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इनको हटाने के अहकाम जारी किए। उसके बावजूद 10 रोज तक ये ओहदे पर रहा, लेकिन उसके बाद जुल्फिकार अली शाह जो चेयरमैन एंटी करप्शन है इस वक्त छुट्टियों पर गए, उन्होंने जाते जाते ही इनको ओहदे से सरेंडर कर दिया। इस वक्त कायम मुकाम जो है चेयरमैन एंटी करप्शन डॉक्टर बदर जमील मंजरू है, लेकिन साबिक जो छुट्टियों पर जाने वाले चेयरमैन एंटी करप्शन थे उन्होंने जाते हुए इनको सरेंडर कर दिया। शहबाज मुगल जो पुलिस में 16 ग्रेड के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले की खिलाफवर्जी करते हुए साबिक चेयरमैन ने तैनात किया था, जिसको इस वक्त चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गैर कानूनी करार देकर ओहदे से सरेंडर कर दिया है। जी आज़ाद नूरियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची एयरपोर्ट पर पीआईए के तैयारे और पानी फरामी पर मामूर गाड़ी में तसादुम। हादसा कराची से इस्लामाबाद के लिए इजाफी परवाज नंबर PK8300 के तैयारे को पेश आया है। बात करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद रहमानी मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कराची एयरपोर्ट पर पीआईए तैयारे और पानी फरामी पर मामूर गाड़ी के दरमियान जो है वो तसादुम हुआ है। इस वजह से हादसा कराची से इस्लामाबाद के लिए इजाफी परवाज नंबर PK8300 के तैयारे को पेश आया था। रवानगी से कबल रनवे पर मौजूद ATR तैयारे को पानी सतह पर मामूल गाड़ी तैयारे के निचले हिस्से से टकराई, जबकि गाड़ी के टकराने से रजिस्ट्रेशन नंबर APPHH के हामिल तैयारे को नुकसान पहुंचा है। परवाज के मुसाफिर लॉन्च से तैयारे पर मुंतजिर होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि अलग सुबह 6 बजे रवाना होने वाली परवाज हादसे के बाद 4 घंटे से ज्यादा जो है वो मनसूख कर दी गई है। इस हवाले से तैयारे को मजीद चेकअप के लिए पीआईए इंजीनियर रवाना हुए हैं और परवाज के मुसाफिरों को दीगर परवाजों में एडजस्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आईजी सिंध की ज़ेर सदारत यौम शुहदा पुलिस के इंतजामात से मुतल्लिक़ इजलास 2022 से 2024 तक शहीद पुलिस एहलकार और अफसरान के केसेस पर होने वाले पेशरफ्त के हवाले से जोनल और डिविजनल DIGs ने ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, इजलास की तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
IG सिंध के ज़रिए सदारा 4 अगस्त को यौम शोहदाए पुलिस के इंतजाम से मुतालिक जायजा इजलास लिया गया है। इजलास में साल 2022, 2023 और 2024 में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों अफसरान के केसेस पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से जोनल और जो जोनल DIGs ने ब्रीफिंग दी है। साल 2022 और 2023 में शहीद एहलकारों और अफसरान के केसेस तकरीबन हल किए जा चुके हैं। ब्रीफिंग में कहा गया है साल 2024 में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के केसेस पर तफ्तीश की जा रही है। शोहदा के खानदानों की हर तरह से देखभाल की जा रही है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि शहीदों की जेर तफ्तीश केसेस पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जाए। शहीदों के केसेस में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारियां और पेशरफ इत्मीनान बख्श हैं। शहीदों के केसेस में नामजद अदम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ गैर मामूली इक़दाम किए जाएं। गुलाम नबी मेमन IG सिंध ने कहा कि पुलिस किलिंग में मुलविस मुल्जिमान के सरों की कीमत मुकर्रर करके इनके भरपूर तशहीर की जाए। शहीदों का लहू हरगिज़ जायगा नहीं जाने देंगे। गुलाम नबी मेमन IG सिंध ने कहा है कि हमें मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर निशान इबरत बनाना होगा। जी बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, विथहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। कराची में 100 फ्लोर मिल्स से सप्लाई बंद। 3 रोज में 100 किलो की 3 लाख बोरियां सप्लाई न हो सकी। आटे की किल्लत का खदशा। फ्लोर मिल्स मैनेजर मोहम्मद वारिस कहते हैं कि अगर हड़ताल फौरी खत्म हो जाए तो भी सप्लाई चेन बहाल करने में 24 घंटे से ज़ायद का वक्त लगेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। फ्लोर मिल्स की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। मुल्क भर की 2000 फ्लोर मिल्स में गंदम से पिसाई 3 रोज से बंद। सिंध भर में 300 से ज्यादा फ्लोर मिल्स से भी आटे की सप्लाई रुक गई। कराची की 100 फ्लोर मिल्स से आटे की सप्लाई मार्केट में 3 रोज से रुकी हुई है। फ्लोर मिल्स मैनेजर मोहम्मद वारिस का कहना है कि कराची की 100 फ्लोर मिल्स से यौमिया 100 किलो की 1 लाख के करीब बोरियां मार्केट में सप्लाई की जाती हैं। रसद का रुकना बड़ी किल्लत का इशारा है। कराची में तकरीबन 100 फ्लोर मिल्स हैं जो लाख बोरी के करीब जो है ग्राइंडिंग करती हैं और रोज़ का रोज़ ग्राइंडिंग करती है। रोज़ का रोज़ मार्केट में माल जा रहा होता है। तो आज तीसरा दिन है, फ्लोर मिल्स मुकम्मल तौर पे बंद हैं और मार्केट में सप्लाई नहीं हो रही। मोहम्मद हारिस ने साफ कहा कि अगर आज भी फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म हो जाए तो आटे की सप्लाई बहाल करने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त दरकार होगा। अगर हम आज फैसला होता है, आज से अगर हम प्रोसेस शुरू करते हैं तो 24 घंटे दरकार होते हैं फ्लोर मिल को ऑपरेशन में लाने के लिए। फिर जो सप्लाई जाती है मार्केट में कम से कम जो है ना उसमें भी 5 से 6 घंटे दरकार होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 24 से 36 घंटे लगते हैं दोबारा जब ऑपरेशन में आती हैं फ्लोर मिल्स और मार्केट में आटे की सप्लाई बहाल होती है। फ्लोर मिल्स की हड़ताल मुल्क भर में जारी है। अगर ये हड़ताल खत्म ना हुई तो आटे की बड़ी किल्लत का खदशा है। तमाम फ्लोर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स को मुस्तरद करके हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर ठन गई। फ्लोर मिलर्स की हड़ताल के बायस आटे समेत गंदम से तैयार होने वाली दीगर अशिया की तैयारी का अमल रुक गया है, जिसकी वजह से मिन्नतकशों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। फ्लोर मिल्स में शोर मचाती भारी भरकम मशीनें खामोश। आटे और दीगर अशिया की तैयारी का अमल मुअत्तल। फ्लोर मिल्स बंद होने से मेहनतकश तबका परेशान हो गया। फ्लोर मिल्स पर काम करने वाले मेहनतकशों ने हुकूमत से मामला हल करने का मुतालबा कर दिया। कहा फ्लोर मिल्स चलेंगी तो हमारे घरों का चूल्हा भी चलेगा। मिलें बंद हुए तीसरा रोज है। तीसरा दिन हम बेरोजगार हैं, ऐसे फैरक बैठे हुए हैं और खाने के लिए आटा नहीं मिल रहा है। बहुत ही परेशानी है क्योंकि हमें कुछ आटा तैयार होगा रोज़ करेंगे थोड़ा बहुत घर का सरकट चलेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है, काम है नहीं, हम मजदूर आदमी हैं, परेशान हैं। काम लगेगा तो हमारा भी कुछ बनेगा ना, बहुत परेशानी हो रही है। फ्लोर मिल्स की बंदिश से आटे के बुरान का खदशा संगीन होने लगा। हुकूमत और मिल्स मालिकान के दरमियान तनाज़ा आटे को शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर करने का सबब बनने लगा है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के तीसरे रोज आटे का बहरान सर उठाने लगा। बड़ी रिटेल मार्केटों में आटा नायाब हो गया। दुकानदारों का कहना है कि 3 दिन से आटे की सप्लाई नहीं हुई, जो माल था वो फरोख्त हो गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, अगर हम फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की बात करें तो आपको तीसरे रोज़ भी उन्होंने जो है अपनी मिल्स को बंद रखने का फ़ैसला किया है और अब तक हुकूमत की जानिब से फ्लावर मिल्स के साथ कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं। अब जब हम ये कह रहे थे कि मार्केट के अंदर एक बुरानी कैफियत
हो सकती है आटे की शॉर्टेज का मसला आएगा, आम आदमी जहाँ सस्ता आटा लेने के लिए दरबदर हो सकता है, उसके असरात अब मार्केट में दिखने शुरू हो गए। मैं अपने कैमरामैन अजलान से कहूँगा ज़रा दिखाएं। इस वक्त हम रऊफ किराना मार्केट लियाकताबाद में मौजूद हैं। ये पूरी मार्केट है जो कि किराना से मुंसलिक सामान लोग यहाँ आते हैं, डेली बेसिस पे अपनी ज़रूरियात का सामान यहाँ से लेके जाते हैं। अब जो दुकानदार हैं ज़रा हम उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या स्टॉक मौजूद है, क्या आटे की किल्लत का जो खदशा हम जाहिर कर रहे हैं वो अब होना शुरू हो गया है कि नहीं। ज़रा दुकानदार से ही जान लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी, हम आटा डेली बेसिस की बुनियाद पर ख़रीदते हैं। हमारी 30 बोरी जो है वो राशन की आती थी, 5 बोरी फाइन आती थी, 5 बोरी मैदा आता था, तो वो हम डेली रात को बेच के ख़त्म करके दूसरे दिन का माल लिखाते हैं, दूसरे दिन फिर आ जाता है। तो आज 2 दिन हो गए हमारे यहाँ आटा नहीं है, और मिल मालकान जो है वो विद होल्डिंग टैक्स की वजह से बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जब तक गवर्नमेंट इस मसले को हल नहीं करेगी हम आटा सेल नहीं करेंगे, ना बनाएंगे। मार्केट में जो चीज़ों के अब आटे की कीमतों में जो है वो इजाफा नज़र आ रहा है। जहाँ हमने देखा मैदे की जो बोरी है वो तकरीबन अब 6,000 रुपये पे चली है। इसी तरह आटे की बोरी भी जो है वो 5,000, 5,500, 5,700 के करीब जा रही है। तो अब यही लगता है जो आटा 90, 96, 98 रुपये पे था वो अब 110 और 120 रुपये किलो पे। वैसे भी मार्केट में जो छोटी दुकानें वो 120 और 120, अब यकीनन 140 और 150 रुपये के रेट जो है वो छोटी दुकानों पे सामने आने शुरू हो जाएंगे। जी, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। फ्लोर मिलर्स की हड़ताल, कराची की 2500 के करीब छोटी चक्कियों से आटे की सप्लाई जारी। 10 किलो आटे का थैला 1200 रुपये से 1240 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालकान के दरमियान विद होल्डिंग टैक्स के मामले पे जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि हड़ताल जारी है और तीसरा रोज़ है हड़ताल। ताहम अगर हम कराची की बात करें तो कराची में मजमूई तौर पर जो सूरत सामने आती है वो छोटी चक्कियों की तादाद तकरीबन 2500 के करीब है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस हड़ताल का असर जो है वो छोटी चक्कियों पर देखने में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड के इलाके में एक छोटी चक्की पर, और यहाँ पर जो है वो मामूल के मुताबिक जो है जो चक्की का आटा है वो फराम किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ चक्की के मालिक मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। जानते हैं आमिर, हड़ताल के हवाले से आप क्या कहेंगे और आप आटा फराम कर रहे हैं चक्की का? जी अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त तो हम आटा फराम कर रहे हैं। हमारे पास इसके अलावा बाजरे का, मकई का और दूसरा आटा दस्तयाब है। इस वक्त कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दस्तयाब है आटा। और हमारे उनकी मिल वालों से इस वक्त तक हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो फ्लोर मिल वालों का कोई इशू चल रहा है जैसे विद होल्डिंग टैक्स वगैरह के, इससे तो इस सिलसिले में हमें इसका ज़्यादा कोई इल्म नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे छोटी चक्की के मालिक मोहम्मद आमिर, जिनका बताना यह है कि हुकूमत और फ्लोर मिल मालकान के दरमियान जो भी तनाज़ा चल रहा है उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। गंदम जो है वो 92 रुपये किलो के हिसाब से फराम की जा रही है ओपन मार्केट में, और अगर हम चक्की के आटे की बात करें छोटी चक्की के तो उसकी कीमत जो है तकरीबन 120 रुपये किलो से लेकर 124 रुपये किलो तक पे दस्तयाब है। जी, डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 2500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखें। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने आस्तीनें चढ़ा ली। जिला साउथ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। SSP साउथ के मुताबिक जिले के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर 39 से ज़ायद मजालिस मुनक्किद होंगी और 12 से ज़ायद छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार हम वक्त चौकस रहेंगे। हमारी रूटीन की मुहर्रम होता है कराची में, जो कि ईस्ट और साउथ जोन में मेनली होता है। जो 2 मेगा इवेंट्स या मेजर इवेंट्स होते हैं 9-10 मुहर्रम के, वो ईस्ट से शुरू होते हैं और साउथ जोन में आके कल्मिनेट होते हैं। एक तो वो सिक्योरिटी है और उसके लिए अलग से हमारी नफरी डिप्लाइड है। मुहर्रम उल हराम की मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी पर 2500 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकार, SSU कमांडोज और RRF के एहलकार भी ड्यूटियां अंजाम देंगे। जुलूस के रूट पर सादा लिबास एहलकारों के साथ साथ बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए जाएंगे। तकरीबन 2400 हमारी डिप्लॉयमेंट है जो मैन मुहर्रम के लिए है, और 700 बंदे हमारे डिप्लॉयड हैं मुख्तलिफ यूनिट्स के, हम जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ड्यूटी कर रहे हैं। वो सैयदना और बहरी कम्युनिटी के जो इवेंट्स हैं 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, उसके लिए अलग से वो डिप्लॉयड है। जुलूस और मजालिस की CCTV कैमरों से निगरानी भी की जाएगी, जिन्हें कंट्रोल रूम्स में मॉनिटर किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। 6 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से शहजादे अली असगर अलैहिस्सलाम के याद में जना अस्पताल के सामने सबील लग गई। सबील से मरीज, तीमारदार, राहगीर बड़ी तादाद में इस्तेफादा कर रहे हैं। मजीद जानेंगे अक्सा शेख से।
جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں محرم الحرام کے ایام میں ہر جگہ شہدائے کربلا کی یاد میں سبیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے شہدائے کربلا کی تکلیف کو یاد کرتے ہوئے سید شہداء اور رفقا کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج 6 محرم الحرام ہے جو کہ منسوب ہے حضرت امام علیہ السلام کے صاحبزادے جو معصوم علی اصغر ہیں، جن کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا تھا، ان کی یاد میں آج یہ سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ جنا ہاسپٹل کے بالکل سامنے سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جنہوں نے سبیل کا اہتمام کیا ہے فرحان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرحان، مجھے یہ بتائے گا کہ سبیل کا آپ نے اہتمام کیا ہے، یہ کب سے آپ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبیل پہلی محرم سے لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ 10 محرم تک رہے گی، اور ہمارا مقصد ہے کہ جو سامنے مریض آتے ہیں، جو ان کے ساتھ تیماردار ہوتے ہیں، ایمبولنس کے ڈرائیورز، یہ چلتا ہوا مین روڈ ہے، رکشہ، ٹیکسی، ان سب لوگوں کی خدمت کرنا امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس کی یاد میں۔ فرحان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا یہی کہنا تھا مقصد تو شہدائے کربلا کی یاد میں یہ سبیل لگانا ہے، لیکن ہاسپٹل یہاں پر قریب ہے تو یہاں جو تیماردار راہ گیر ہیں وہ بھی آ کے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جی، محرم الحرام کی مناسبت سے شہر میں مختلف کاروباری شخصیات نے بھی سبیلیں لگا لیں۔ سخی حسن پر سبیل امام حسین کا اہتمام کرنے والے محمد ریان کہتے ہیں کہ سبیل لگانے کے لیے اہل تشیع ہونا ضروری نہیں، سنی بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے سبیل لگا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے فرحان خان سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، حضرت امام حسین کی یاد میں جو وہ سبیل کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 6 محرم الحرام ہے، اسی کی مناسبت سے جو وہ مختلف شاہراہوں پہ سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حافظ ٹریول اینڈ ٹورز کی جانب سے سخی حسن روڈ کے اوپر سبیل لگائی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ CEO موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا اس سبیل کا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا کیا جو وہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، مقصد تو سبیل کا یہی ہے کہ میرا الحمدللہ تعلق سنی گھرانے سے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں غم امام حسین کے لیے انسان کو سنی ہونا یا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک بھائی چارے کا پیغام ہے کہ شیعوں کے لیے بھی ضروری ہے امام حسین کا غم، اور سنیوں کے لیے بھی۔ میں سمجھتا ہوں جب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کا غم نہ ہو اور امام حسین کا غم نہ ہو۔ تو یہ ایک میسج ہے کہ بھائی چارے کا لوگوں میں ہو، اور جو شیعہ سنی کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو۔ مجھے بتائیے گا یہ پہلی دفعہ سبیل لگائی گئی ہے اور اس میں جو ہے بنا تفریق و مذہب اور رنگ و نسل جو وہ یہاں پہ آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں لوگوں کے لیے ہیں؟ مشروبات ہیں، پانی ہے، کیا چیزیں؟ جی، یہاں پہ شربت کا اہتمام کیا گیا ہے، ہم نے شربت کا اہتمام کیا ہے، پانی کا اہتمام ہے اور بریانی کا اہتمام ہم نے کیا ہے۔ تو بس یہ بھائی چارے کا ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انوالو ہوں۔ ایک CEO ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ایک بہت اچھا پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بنا کسی رنگ و نسل اور تفریق و مذہب کے یہ سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف خدمت کرنا ہے۔ یہاں پہ آنے والے تمام راہگیر ہوں، تیماردار ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے جو وہ یہاں سے گزرنے والے تمام راہگیروں کو جو وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سبیل جو ہے وہ سال میں پہلی دفعہ ان کی جانب سے پہلی دفعہ لگائی گئی ہے، جس میں مختلف مشروبات کا انتظام کیا گیا ہے۔ جی، PECHS بلاک 6 کے مکینوں کو کئی ہفتوں سے پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ صاف پانی کی لائن میں سیوریج کا پانی شامل ہونے لگا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں انتظامیہ کو متعدد درخواستیں دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ مزید بتائیں گے خورشید رحمانی۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں PHS سوسائٹی بلاک 6 میں، اور 58 اور 59 گلی کے اندر موجود ہوں، لیکن یہاں کی گلی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب صورتحال ہے۔ میرے ساتھ اس وقت وکیل صاحب موجود ہیں جو اس مسئلے کو عدالت تک لے کے گئے اور ان سے گفتگو کریں گے۔ وکیل صاحب بہت شکریہ، یہ بتائیے گا یہ جو مسئلہ ہے یہ کب سے ہے اور اس کی حل کے لیے آپ نے کیا کیا کوششیں کی ہیں؟ یہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی یہاں آ کے کوئی افسر دیکھے تو وہ خود ہی پریشان ہو جائے گا کہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا میجر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہ گلی ہماری مستجاب الدین صاحب نے گٹر لائن اپنے طور پہ بچائی تھی، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے یہ توڑ پھوڑ دی ساری پوری گلی۔ اس کے بعد اس کی مرمت کے لیے ہم نے میئر کراچی کو بھی لکھا ہے، چیئرمین کراچی کو بھی لکھا ہے، تو کسی نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جا کے سیمپل دیا ان کو، ایکسین کو سیمپل دیا، لیکن کوئی ان کی طرف کوئی ایکشن ہی نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ سیوریج لائن ٹوٹی ہوئی ہے، پانی آتا نہیں ہے، جو آتا ہے میرے خیال سے 10 منٹ آتا ہے پانی، اس کے بعد لائن چھوڑ دیتی ہے، تو بجلی کا بل بھی اس کی وجہ سے زیادہ آتا ہے۔ ظاہر ہم بار بار تو چپک کے کوئی رہ نہیں سکتا، ساتھ میٹرو کے ساتھ بیٹھ سکتا،
तो पानी जो है ये मुसलसल जो है, पहले तो पानी यहीं सही आता था, लेकिन अब पता नहीं क्या मसला हुआ, पानी भी नहीं आ रहा और सीवेज के पानी मिक्स कर रहे हैं। का कहना है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वाक़े पर नोटिस लें और मकामी जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो इसको फिलफौर जो है वो इस गली को भी साफ़ करवाएं और यहाँ का जो सीवरेज का मसला है उसको भी फिलफुल हल करवाएं। और जो सीवरेज के साथ जो पानी, जो पीने का पानी आ रहा है उसके साथ जो पीने वाटर बोर्ड का पानी आता है लेकिन उसके साथ गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है, उनकी लाइनें भी तब्दील होनी चाहिए, तब कहीं जाके ये इलाके के जो लोग हैं वो इस मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। जी, कोरंगी में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। 1.5 नंबर की सड़क गंदे पानी में डूब गई, जिसके बायस शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 1.5 नंबर पर और कोरंगी 1.5 की आप सड़क देख सकते हैं मेरे अक़ब में, जो कि काफ़ी खस्ता हाल है और सीवरेज का यहाँ पर निज़ाम जो है वो दरम बरम है। तब के गटरों के जो है यहाँ पर जो होल है, ढक्कन है, वो भी यहाँ पर गायब है। मलबा यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, जिसकी वजह से शहरियों को, गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना होता है। और यह कारोबारी ये इलाका है, इस कारोबारी इलाके में जो दुकानदार हैं उनको शदीद परेशानी होती है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपकी यहाँ दुकान है तो क्या परेशानी हो रही है आप लोग को इस गंदी और गलाजत के बाइस? अक्सर ही रात को यानी जो लेडीज़ के साथ वो होती है ना, गटर में गाड़ियाँ की वो गिरी हुई होती है और गटर का पानी पूरा यहाँ पे यानी कि वो बह रहा होता है। बारिश में तो और ही यानी कि इसका जो है बुरा हाल होता है। कब से ये हाल है इस यहाँ पे ठीक क्यों? कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं और 7-8 महीने से कभी तक मगर कंप्लेनें करी है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई नहीं आता है यहाँ पे कोई ठीक करने के लिए? बस जो आते हैं वो सिर्फ अपनी वीडियो बनाते हैं, बस वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, फिर वो चले गए, मगर बाद में उसका हाल यानी कि वही है। अभी भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद है जिनका ये कहना है कि इस गंदी और गलाजत के बायस जो इनके कारोबार में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, कस्टमर जो है वो नहीं आते। बहुत बड़ी ये मार्केट है, आप देख सकते हैं कोरंगी 1.5 नंबर की, काफ़ी जो है वो आबाद इलाका है ये, और यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं, जो यहाँ के इलाका मकीन है, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर रात के औकात में जब अंधेरा होता है तो जो है मोटरसाइकिल वाले जो अपनी फैमिली के साथ, लेडीज़ के साथ जाते हैं, उनको कई बार जो है वो हादसा का वो शिकार हुआ है, जिसमें लेडीज़ जो यहाँ पर कई दफ़ा गिर कर ज़ख्मी हुई हैं। तो इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले और यहाँ की जो सीवरेज का निज़ाम है उसको ठीक कराए। जी, सिंध गवर्नमेंट लैक्टाबाद अस्पताल के बंद ICU यूनिट की खबर पर महकमा सेहत का नोटिस। महकमा सेहत ने सिंध गवर्नमेंट लैक्टाबाद अस्पताल हुकाम से रब्ता कर लिया। महकमा सेहत सिंध ने अस्पताल हुकाम से मुतालबा अमले की तफसीलात भी तलब कर ली। बात करेंगे फरहान खान से। फरहान बताइएगा, अस्पताल हुकाम ने मतलूबा अमले की तफसीलात तलब की हैं? जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट याक्ताबाद अस्पताल के बंद ICU यूनिट की खबर पर महकमा सेहत सिंध ने जो वो नोटिस ले लिया है। गुज़िश्ता रोज का हमने TG21 ने जो वो सिंध गवर्नमेंट याक्ताबाद अस्पताल के ICU वार्ड की खबर नशर की थी। 20 मार्च से ICU वार्ड गैर फाल था, जिसकी खबर नशर होने पर ही महकमा सेहत सिंध ने नोटिस भी ले लिया है और महकमा सेहत सिंध ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल याक्ताबाद के हुकाम से रब्ता भी किया है। महकमा सेहत सिंध ने सिंध गवर्नमेंट याक्ताबाद हुकाम से जो वो तमाम का तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि पीर को सेक्रेटरी सेहत सिंध रेहान बलोच की, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिंध गवर्नमेंट याक्ताबाद अस्पताल डॉक्टर अतीक कुरैशी से जो वो मुलाकात मुतवक्के है, जबकि मुलाकात के अंदर अफरादी कुव्वत की कमी और ICU यूनिट फाल ना होने के हवाले से जो वो तबादला ख्याल भी किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताएं, FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे अनुषा जाफरी से, बताइएगा। अनुषा, अपडेट कीजिएगा हमें FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई के हवाले से। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाइयाँ, 3 मुसाफिर अफलोड कर दिए गए हैं। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान की शनाख्त जो शाहज़ेब मोहम्मद ज़ैना शहबाज के नाम से हुई है। मुल्जिमान मुजद्दिद पर अज़रबैजान जा रहे थे। तलाशी के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से अल्बानिया का जाली वीज़ा लगा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने अपने रिश्तेदार से मज़कूरा वीज़ा हासिल किए थे। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने फीसद 12 लाख रुपए के एवज मज़कूरा वीज़े हासिल किए। मुल्जिमान ने मज़कूरा वीज़े जो है वो की बुनियाद पर अज़रबैजान से अल्बानिया जो है वो और जर्मनी जाने की कोशिश करना थी। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके AHT कराची मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी। बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताते चलें कि FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले 3 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार किए गए। मुल्जिमान की शाहज़ेब, ज़ैन और शहबाज के नाम से शनाख्त हुई। मुल्जिमान विजिट वीज़े पर आज़रबाईजान जा रहे थे।
तलाशी के दौरान मुल्जिमान के कब्जे से अल्बानिया का जाली वीज़ा बरामद हुआ। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।